Uh, Good afternoon. Good afternoon, sir. And good afternoon, everyone. A warm welcome to all of you. And it is an honor to have Professor Dr. Ranjit sir with us today. And we are privileged to have an opportunity to listen to you, sir. And on behalf of all the students and faculties gathered here, I welcome you, sir, to this webinar. And we are grateful to him for accepting our invitation humbly and gladly to become chief guest and speaker of this webinar. And now I am moving down and request to Anam Fatima, please continue the session. Thank you, ma'am. Since past 1 year, COVID-19 pandemic has caused the largest disruption of education in history from primary schools to technical education, institution and universities. For ensuring the continuity in learning during school closures, universities have implemented online learning platform that now had become a priority for schools all over the world. Now, I would like to briefly introduce our chief guest. Professor Dr. Ranjit Singh Sir is a Vice Chancellor at Shobhit University, Gango, and Director at Adarsh Vijayan Institute of Pharmaceutical Sciences, a constituent institute of Shobhit Universities. He is a recipient of Senior Scientist Award 2009 from All Medical Society. Last year, he's among the 101 most fabulous healthcare leaders by World Health and Wellness Congress and Awards. He has more than 130 publications in journals of national and international repute. He has guided 38 MPharm dissertations and 19 research scholars for PhD. He's on the panel of reviewers, advisory and editorial board of different journals. He's also in the panel of various regulatory bodies like AICTE, All India Council of Technical Education, PCI Pharmacy Council of India, and NBA National Board of Accreditation. Professor Singh has contributed immensely in the field of novel drug delivery systems, herbal formulations, and standardization of drugs. Now, I would request our respected chief guest, Professor Dr. Ranjit Singh Sir, to kindly express your encouraging view for today's webinar. Please, sir. Thank you very much for the introduction. And I think it is a question answer type of session or just a delivery from my side. Yes, it is a question type of session. So you will be asking question and I will be answering, right? Yes, sir. Okay, it is very. I am very happy to be here with you all. Thanks to Dr. Manju Pandey for giving me this opportunity. And it is always, encouraging and energizing to interact with students in particular, be of diploma or degree or postgraduate, because they give you energy and they give you a feeling of being young. So I'm very happy here and convey my sincere thanks to the management and to all the faculty colleagues. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. So my first question from student side is regarding the new education policy. The first question is the new education system format, the choice of students to choose any subject from any stream, multiple entry and exit system. How will these enhance student career prospects? Thank you for the question. It's a good question, in fact. And if we see national education policy as such, if you go into the in-depth study of the policy, you will find that this flexibility in learning is provided there in terms of, say, multiple entries, multiple exits, and some choices. Because this policy is to be implemented, and we all know that in the next 10 years, it will become operational, and its implementation has started right now. Lots of homework is to be done for that, and on government side, we all know that committees have been constituted and they're working on this. What I feel that this choice of whether of subjects or whether of entry and exit will definitely enhance learning and will prepare students of the future, where we say that they should be skilled
and they will be skilled in the fields, in the arena in which they are interested. That is one thing, because we are not going to impose anything on them. We are giving them liberty to choose the area, specific area. And the most important thing of this policy is that there is basically no definite boundaries between the disciplines, across the discipline. For example, arts versus science. So this multiple entry and exit system, as well as the choice of subjects, whether the core one or the optional one, will provide that what you call as learner-oriented atmosphere, which will be very conducive for the learner. And of course, in national education policy, as we all know, the teachers are kept at center of this whole thing. That teachers will be given all due regards, all due facilities, so that they are able to make the learner comfortable and good. So this multiple entry and multiple choice definitely will enhance the learning output. Okay, thank you, sir, for the explanation. So my next question is, how can any student have a positive attitude towards learning? Yes, that is very important, because if you want to learn from the depth of your heart, then you have to learn sincerely, and you have to develop that positive attitude. Positive attitude is not only required in learning, but it is required everywhere in all aspects of life. And you see how positive attitude can be developed. That is one thing. And once you are positive, when you are full of energy, then you can learn things very easily. You will be able to retain things. And for that, the very first requirement is the happiness, basically. And the title itself speaks, which is chosen by you. It is a very nice title. I don't know who chosen this title, but a happier you, study habits to enhance performance and well-being. It's not my title, dear student. This is a very good title. Credit goes to me, sir. Credit goes to me. Okay. So this is a nice. So the title itself says that when you are happy, then you are positive, and when you are positive, then you can perform at the maximum. I'm not saying optimum. You give your optimum, maximum efficiency. So whether it is learning or doing some job, if you are happy, then you will be able to do learning in a very nice way. You will be able to absorb everything, and you will be able to implement everything. And we all know what happiness is as human beings, whether we are students, whether we are teachers, or whatever role we are playing in society. We know that if we are happy, then we will be able to perform well. And for happiness, gratitude is crucial. We should have that gratitude, because happiness basically is a state of mind. And one thing I would like to mention here, मैं अपने सारे स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि जहां तक हैप्पीनेस इंडेक्स की बात है, हमारी कंट्री बहुत नीचे है. अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया जिसमें 156 कंट्रीज को इवेलुएट किया गया, और उसमें हमारी कंट्री का नंबर 144 है, जबकि हमारे पड़ोसी का 66 है. And the Finland is the happiest country. So that means there lot has to be done as far as the happiness is concerned. And what I feel personally is that happiness is something which you can bring from inside. It is up to you to be happy. So it is just state of mind. You have to be happy. You have to control your mental and emotional states. You have to bring out positive and pleasant emotions in you, and that you can do very easily. No investment is there. So be happy, and once you are happy, then definitely you will be able to do the work given to you, be it learning, be it teaching, or be it anything else, be your full efficiency. So happiness, develop the positive attitude, and positive attitude definitely will help in learning. There is no doubt in that. Yes. Yeah, तो okay. सर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो इन्होंने प्रोवाइड करी है, और होपफुली हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस इंडेक्स जो खासकर बच्चों के लिए है तो इंक्रीज करेगा ये लेवल. हम लोग भी जो है बिलो 100 तो आ ही जाएंगे,
No, definitely. See, there is always a scope of improvement. Even if you are at the top, even then to sustain there on that position, you have to work hard and improve. So, if we speak of national education policy, which we're not able to implement within 1 year, obviously we'll start implementing it right from this year, and then there will be directions from the government. But definitely, the provisions of the policy, they will definitely lead to, a conducive atmosphere of learning, and obviously happiness, where the student will like learning, and once you like something, you will be able to perform well. There is no doubt in that. Okay, sir. So my next question is regarding today's webinar, like how student can maintain balance between academic performance and their mental well-being. See, these questions basically, they are all, related to the title itself, and the title, when I will again say that it just, concentrate and emphasize on happiness. And the very first thing is that how you can develop happiness, because it is a state of mind. So your perception, your thinking, your things, how you do, how you perform, how you behave, it all leads to happiness. And if you ask me how we can be happy, then definitely the very first thing is think positive. Think positive is, again, I will say, it is something where you not to invest anything. Here you have to be a bit, broad-minded, and you have to develop yourself in a direction where you start don't minding small things. अगर हम बच्चों से मैं बात करूं तो वो भी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि हम छोटी छोटी चीजों से नाराज होते हैं. कभी किसी स्टूडेंट ने टीचर को नमस्ते नहीं की तो टीचर नाराज हो गया, एक कलीग ने अच्छा कर लिया, वो उससे वैसे जलना शुरू कर देता है. हमें एक्चुअली compete नहीं करना, हमें कम्प्लीमेंट करना है, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है. एंड इस प्लेटफॉर्म पे मैं बड़े बोल्डली कह सकता हूँ कि आई फॉलो ऑल दीज थिंग्स. मुझे कभी किसी की प्रोग्रेस से जलन नहीं होती है, एंड आई ऑलवेज फील इन शेयरिंग. और अभी जैसे मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, अभी हम 8 फरवरी को एक बड़ा दिन मनाते हैं, हमें प्रेरणा दिवस के रूप में, जो हमारे इंस्पायरर का बर्थडे होता है. तो एक हम सर्वधर्म सभा का आयोजन करते हैं उसमें, जिसमें अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो टॉप पे हैं, वो आते हैं और अपना व्यूज शेयर करते हैं. और विशेषकर जो हमारे इंस्पायरर हैं बाबू विजेंद्र कुमार जी, उनकी बात करते हैं. अभी 8 फरवरी को जो हुआ, उसमें जो डिस्कशन हुआ, उसमें 2 बातों पे बहुत जोर दिया गया. एक इल्म पे यानी नॉलेज पे, और एक तालीम पे, एक शिक्षा पे. तो ये कहा गया कि एक ऐसा दौलत है, एक ऐसा धन है शिक्षा और नॉलेज, ज्ञान, जिसको आप जितना बांटते जाओगे उतना ही बढ़ेगा. ये कहा जाता है, पर हम इसको फॉलो नहीं करते. हम तो, अगर मैं बात करूं अपने कलीग के साथ, तो हम कोई रिसर्च आइडिया है तो हम उसको चुपचाप अपने पास रखते हैं कि कोई दूसरा ले लेगा तो चुरा लेगा. ऐसा होता भी है. और जब हम सारे अच्छे हो जाएंगे तो डेफिनेटली माहौल सुधरेगा, और माहौल सुधरेगा तो देश सुधरेगा. तो हैप्पीनेस जो है वो सबसे पहली चीज है. कोई भी परफॉर्मेंस, इंक्लूडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, मेंटल वेलबींग, जैसे मैंने कहा, परसेप्शन. मैं अपने कलीग से भी यही बात करता हूँ, और जब जब मुझे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलता है, मैं ये कहता हूँ कि आप परसेप्शन बदलिए. मेरे सामने कोई आदमी बैठा है तो मैं ये क्यों सोचूं कि वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है. हमारी जो स्टार्ट होता है, हमारी किसी चीज की शुरुआत जो होती है, जनरली आप अपने आप एनालाइज करिएगा, रेट्रोस्पेक्शन करिएगा. हमें लगता है कि सामने वाला आदमी मेरा नुकसान सोच रहा है. अगर हम इस सोच को बदल दें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. तो पहले तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है. एक चीज, एक बड़ा अच्छा शब्द साथ में है जिसको बोलते हैं कि आप रिसिलियंट हो जाओ. यू हैव टू कल्टिवेट रिसिलियंस. रिसिलियंस मींस, सी, बीइंग ह्यूमन. जब कोई मेरे को बुरा बोलेगा तो मेरे को बुरा लगेगा, क्योंकि मैं इंसान हूं. इसमें इट्स वेरी नेचुरल. पर कितनी जल्दी आप उस स्टेट से बाहर आ जाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर कोई मेरे को सुबह गाली देके जाता है और मैं दिन भर उससे डिस्टर्ब रहा हूं, तो मैं सारा दिन अपना खराब कर रहा हूं. दैट इज वन थिंग. सो रिसिलियंस की वापस उसी स्टेट में आ जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एक तो अगर आप डिस्टर्ब हो भी गए हैं, विच इज नेचुरल, हैप्पीनेस, सैडनेस, जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो हम में आती हैं, पर हम कितनी जल्दी उससे बाहर आ जाते हैं, कितनी जल्दी उस डिस्टर्बेंस से बाहर आ जाते हैं, इसको हम रिसिलियंस कहते हैं, जो हमारी होनी चाहिए. इट ऑलवेज लीड्स टू हैप्पीनेस. इसके अलावा आप जेनरस बन जाइए, बड़े बनिए, बड़ी सोच रखिए. छोटी छोटी चीजों को जो है वो आप हमेशा इग्नोर कर सकते हैं. अच्छी चीजें, दूसरों को पॉजिटिविटी दीजिए, खुद पॉजिटिव होइए. मेरा ये मानना है, मैं अपने कलीग से शेयर करना चाहूंगा कि आप ऐसे डायरेक्टर बने, आप ऐसी फैकल्टी बने,
आप ऐसे लोग बने कि जहां आप जाते हो वहां लोग आपका वेट करें, कि भाई आज जैसे मंजू मैडम, मैं उनको कहूंगा कि एक अच्छे डायरेक्टर बने कि स्टूडेंट भी इनका वेट करें यूनिवर्सिटी में, और मैनेजमेंट भी, और सारे कलीग भी इनके। तो दैट इज, यू कैन डू दैट। फिर ग्रेटिट्यूड हम में होना चाहिए, किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है, चाहे वो ईश्वर हो चाहे हमारे इंसान हो, इंसान भी ईश्वर की एक कृति है, उसके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड एंड टू एवरीबॉडी हु इज डूइंग गुड फॉर अस और फॉर आवर इंस्टीट्यूशन। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है सोशल रिलेशनशिप। कभी कभी हम आइसोलेटेड हो जाते हैं, हमें आइसोलेट नहीं होना है। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज का एक्सट्रीमिटी, अति करना जो है बुरा है। अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पढ़ाई के दूसरी तरफ की चीज हो, शरारतें हो, पढ़ाई हो। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। आप एक सोशल एनिमल हैं, आपको सोशलाइज करना है। सो यू हैव टू डेवलप एंड इंप्रूव सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप, हम क्लास के अंदर की बात करें, हम क्लास को एक कम्युनिटी मानते हैं, और एक बात मानिए, कम्युनिटी के अंदर आप अच्छे से रहेंगे तो कम्युनिटी लर्निंग ऐसी होती है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलते। ऐसे ही जब हम अपने घर चले जाते हैं तो पास पड़ोस उनके साथ हमारे कैसे संबंध हैं, कैसी इंटरेक्शन है, कैसे रिलेशनशिप है, इसको हम इंप्रूव कर लें तो ये सारी चीजें जो है दे लीड टू हैप्पीनेस। एंड वंस यू आर हैप्पी देन योर परफॉर्मेंस इज डीम्ड टू बी इंप्रूव्ड, देयर इज नो डाउट इन दैट। और मेंटल वेलबींग में एक तो सोच आ गई, जो हमने परसेप्शन की बात की। दूसरी इसके साथ आपकी बात आती है कि आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात हुई है, तो इसमें कंप्लीट वेलबींग की बात की गई है, जिसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात की गई है। जब आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं और स्पिरिचुअली फिट हैं, तभी आप अच्छे इंसान बनोगे और अच्छे परफॉर्मर बनोगे। इन तीन चीजों को समाहित करना है हमारे स्टूडेंट्स को भी और मेरे साथियों को भी। और चीजों को प्लान करना है, टाइम को मैनेज करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे पढ़ते रहो, आप हर चीज करो। आपकी सेहत ठीक होनी चाहिए, आपको सोना भी है, आपको खेलना भी है, फिजिकल एक्सरसाइजेज भी करनी है, बिकॉज दे ऑल लीड टू कंप्लीट वेलबींग। और अभी एक टर्म जिसको बहुत एम्फेसाइज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ केयर। अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई आपका दूसरा ध्यान नहीं रखेगा। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा। हमें चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, हमारे सोशल रिलेशनशिप, हमारे फैमिली रिलेशनशिप, हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप। वी हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट एज स्टूडेंट, इफ यू आर very familiar with the family, with the society and with the institute, we will be able to perform very academically. So ये मैं इसमें कहना चाहूंगा कि academic performance में जो है वो mental well-being बहुत important रोल प्ले करती है। और अगर आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट हैं तो आप कोई भी काम 100-200% एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। जी, thank you, sir. So my next question is how introduction of foreign languages can be beneficial for student in terms of their future prospects? जी देखिए, आज अगर हम बात करें तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आज सारा संसार एक विलेज बन गया, ग्लोबल विलेज। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी ने एक इतना अच्छा रोल प्ले किया है, जो आपने अभी जब शुरुआत में आपने ओपनिंग की थी तो यू मेंशन कोविड में जो हुआ, जब हम लॉकडाउन लग गया, फिजिकली हम एक दूसरे से दूर हो गए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वालों के सामने ये बात आई कैसे पढ़ाया जाए। तो शुरुआत में आपको याद हो तो हम जैसे टीचर, मेरे जैसे आदमी कहने लगे कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ऑनलाइन होता ही नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वगैरह वगैरह। पर जब बात शुरू हुई, होते होते आज ये स्थिति आ गई है कि मेरे जैसा आदमी जो बहुत टेक सेवी नहीं है, आज मैं गंगोह में बैठ के लखनऊ और उसके आसपास के ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और टेक्नोलॉजी ने सारे संसार को एक कर दिया है। तो जब सारे संसार को एक कर दिया है तो डेफिनेट सी बात है कि जब हम अपनी बात दूसरे से कहना चाहेंगे तो उसका साधन हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जितनी ज्यादा हम जानेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा। फॉरेन लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन एक पार्ट है। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इसमें एक और चीज को एम्फेसाइज किया गया है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आर्ट है, हमारी जो लैंग्वेजेस हैं और जो संस्कृति है हमारी, उसको जानकर सिर्फ जानना ही नहीं है, जानना है, उसका अनुसरण करना है और उसको पूरे संसार में पॉपुलर करना है। तो
लर्निंग में आप जब एक चीज और बार बार कही जाती है, जो मेरे स्टूडेंट जो हैं ये और ये आप सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, कि स्किल्स की बात की जा रही है। हम लर्निंग को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयबिलिटी वाली बात आती है कि जो बच्चा पढ़ के आता है उसमें उतना कुछ नहीं होता कि वो एम्प्लॉयबल हो। फिर स्किल की बात आती है। तो ये बात तो तय है, आज टेक्नोलॉजी जो है इट इज फास्ट इवॉल्विंग। हर हफ्ते 10 दिन में एक टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर महीने में, हर साल में, हर बदल रही है। इसका क्या मतलब है कि हमें उसके साथ अपने आप को दौड़ाना है, उसके साथ चलना है, हमें स्किल सीखनी है। तो जैसे आप स्किल एनहांस करोगे, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, चाहे वो देश के अंदर की बात हो चाहे देश के बाहर की। तो फॉरेन लैंग्वेज भी मैं उसको एक स्किल के रूप में देखूंगा और देखता हूं। तो आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आपके जो एम्प्लॉयमेंट स्कोप, क्योंकि फाइनल टारगेट तो हमारा यही होता है कि हमारी नौकरी लगे या हम एंटरप्रेन्योर बने और पैसे कमाएं, देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करें, स्वयं की प्रगति में कंट्रीब्यूट करें। तो मेरा ये मानना है कि फॉरेन लैंग्वेज को जो सीखना है वो एक अच्छा कदम है, जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और स्कोप बढ़ेंगे। जी। Okay, sir. Sir, thank you for that. The next question is that to help students, teachers, and policymakers in the learning process, I request you to throw some light that how students will cope up with their pre-COVID-19 learning trajectory. अगर हम ई लर्निंग की बात करें तो देखिए, मेरा जो मानना है, मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, करना चाहूंगा। ई लर्निंग इज समथिंग गुड। और ये ऐसा नहीं है कि कोविड जो हुआ पिछले मार्च के बाद ही ये सब अस्तित्व में आया। इससे पहले भी हम ई प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, मूक्स की बात कर रहे थे, ऑनलाइन या स्वयं के मूक के रूप में, कोर्सरा के रूप में हैं, जहां पे हम सीख सकते हैं। ई लर्निंग का जो एक स्कोप बढ़ा कोविड के ड्यूरेशन के दौरान, मैं एग्री करता हूं कि इसका काफी यूज किया गया और वो यूज काफी हद तक अच्छा हुआ। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूं, और जैसे शुरू में भी कहा मैंने कि किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि हमें वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। ई लर्निंग हमेशा ही स्टूडेंट को मदद करेगी, लेकिन जो फेस टू फेस लर्निंग है, जो हमारी क्लासरूम में टीचर टॉट के साथ इंटरेक्शन है, उसको ये रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इट कैन बी कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू दैट। जैसे आज मान लीजिए, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मैं कर रहा हूँ इस वक्त, तो वो तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने ये ई लर्निंग या ई प्लेटफॉर्म की बात की है। तो इस तरह से हम इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ई लर्निंग का जो पार्ट है, जो कोर्स जी सर। सीखना उसके लिए संभव है। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक चीज और साथ में चलती है कि ऐसा नहीं है कि आप इट्स नॉट सो इजी, नॉट अ केक वॉक। यू नीड इक्विपमेंट्स, यू नीड टूल्स, यू नीड टेक्निक्स। आपके Yes, पास sir. एक लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल फोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसको अफोर्डेबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ये जरूरी है। पर ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें तो आप ये पाएंगे कि ई लर्निंग जो ये पिछले एक साल में काफी अस्तित्व में आया, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करेगा। और डेफिनेटली लर्निंग एबिलिटी को रिफाइन करने में it will be very helpful, and it will be very helpful in enhancing skills of the students, जो अपनी मर्जी से अपने मन की स्किल जिसमें उनका इंटरेस्ट हो वो सीख सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir, for the explanation. So my next question is that what could be the reason for the student to remain happy during study? Okay, again, they are all connected, but I will say that you have to develop, nice habits. And when we say nice habits, that includes study habits as well. You have to see, अगर आप बोलें कि स्टडी हैबिट कैसे इंप्रूव करें, बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आई थिंक हमारे स्टूडेंट साथी समझते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा स्पॉट, प्लेस चाहिए स्टडी करने के लिए। व्हाट यू नीड टू डू इज ए गुड स्टडिंग स्पॉट।
एक सबसे पहले रिक्वायरमेंट स्टडी मटेरियल चाहिए, दैट यू हैव, देन यू नीड अ वेरी गुड स्पॉट, एक अच्छा वातावरण, और ऐसी सब चीजें आपको अपने से दूर करनी पड़ेंगी जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है। अब डिस्ट्रैक्शन में इट वेरीज, इट कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट अदरवाइज यू कैन से कि जैसे टीवी देखना, मोबाइल अपने पास रखना और पढ़ते पढ़ते मोबाइल पे काम करते रहना। एक्चुअली मैं इसको दोनों तरह से लेता हूँ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वो मल्टीटास्किंग भी होती है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है बीच में मुझे कोई मैसेज भी करना पड़े, तो मैं काम भी कर रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ। पर जब कोई चीज एक हद से आगे बढ़ जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो चाहे वो टीवी हो, सोशल मीडिया हो, फोन हो, जो डिस्ट्रैक्शन, वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण, यू हैव टू डेवलप द विल पावर, and willpower again something connected to happiness, and if you have willpower to do things you can do। और इसमें मैं अभी सेल्फ एफिकेसी पे थोड़ी सी बात करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विल पावर के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात करूं तो मैं लगातार नहीं पढ़ सकता, तो बीच में ब्रेक लेने चाहिए। ब्रेक लेने के अपना ध्यान रखना, मैंने सेल्फ केयर की बात की। आप तब तक पढ़ें जब तक एफिशिएंसी आपकी ऑप्टिमम आ रही, हाईएस्ट आ रही है, लेकिन जब आपको लग रहा है कि नाउ यू नीड अ ब्रेक, तो आप ब्रेक दो। ब्रेक में आप वो चीजें करें जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले। यू हैव टू ऑर्गेनाइज फॉर योर स्टडीज, एवरीथिंग यू हैव टू ऑर्गेनाइज। यू कैन क्रिएट और ज्वाइन a study group. You can create some atmosphere, create an atmosphere which soothes you, which gives you energy, which entertains you। जो आप ब्रेक ले रहे हैं उसमें आप प्लांट्स के पास जा सकते हैं, पौधों से बातें कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, एरोमा थेरेपी की बात आजकल की जाती है। और स्टडी में विशेषकर आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ऐसा देखा है, मैं अगर अपनी पढ़ाई के दिनों की बात करूं, मैंने अभी जैसे आपसे व्यक्तिगत बात शेयर की कि मैं लगातार बैठ के पढ़ नहीं पाता, मैं बहुत कम समय के लिए पढ़ता हूं, ब्रेक लेता रहता हूं। पर हमारे ऐसे साथी भी थे जो रात रात भर पढ़ते रहते थे, और रात में इसलिए नहीं सोते थे कि उनसे सुबह जागा नहीं जाता था, तो पूरी रात पढ़ना और एग्जाम दे के आना, पता नहीं नींद कैसे रोकते थे। पर मुझे लगता है कि जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं, हम अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं, तो हमारे लिए उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना सब महत्वपूर्ण है। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आपको रिव्यू के लिए टाइम रखना होगा, आपको जब एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले एक गैप देना होगा जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश कर सको। एंड देन यू टू अंडरस्टैंड कि आप सबसे अच्छा कैसे सीखते हो, what is the learning style which suits you most। it may vary from individual to individual, so everybody has to decide that कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है सीखने का, उसको फॉलो करें। और स्टडी को एक रूटीन बनाएं, जैसे आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं या दोपहर में खाना खाते हैं, उसी तरह से यू कैन ऑलवेज प्लान, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो जब हम ये सब करेंगे तो ऑब्वियसली व्हेन यू प्लान नाइसली इन अ सिस्टमैटिक वे, देन that will help you remain happy and obviously to give 100% of output। then you have to prioritize your positivity, and आपको ये भी देखना है कि क्या चीज से आपको हैप्पीनेस मिलती है, कौन सा एस्पेक्ट है हैप्पीनेस का जिसको आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हो। और आपको अपने आप से ये क्लैरिफाई करना है कि आपको कैसे खुश दिखना है। आपको माइंडफुलनेस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आजकल बहुत सारी योग की बातें करते हैं हम, प्राणायाम की बातें करते हैं, जो आपको सूट करता हो। जिसको अनुलोम विलोम करने से संतुष्टि मिलती है वो करे, जिसको घूमने से मिलती है वो करे। तो इट इज ऑल इंडिविजुअल। आपको अपनी पॉजिटिव इमोशनल मेमोरी को इंप्रूव करना है, आपको अपने अंदर वो पॉजिटिव ट्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है, जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सप्रेस करना है। इसके अलावा हर मोमेंट को आपको एंजॉय करना है, यू नो, सेवरिंग द मोमेंट। आपको अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। अगेन, जो स्ट्रेंथ है उनको और स्ट्रॉन्ग करिए, वीकनेसेस को दूर करिए। आपको हमेशा पॉजिटिव चीजों पे ध्यान केंद्रित करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, ना हम नेगेटिव हों, ना लोगों को नेगेटिव होने दें। आपको पॉजिटिव रीअप्रेजल यूज करनी है। आपको आप कईयों को लिख के अच्छा लगता है, आप यू कैन गो फॉर एक्सप्रेसिव राइटिंग। आप एक वॉक पे जा सकते हैं। यू हैव टू लिव योर वैल्यूज। बहुत सारे सिद्धांत होते हैं लाइफ में, आपको सिद्धांत फॉलो करने चाहिए, देयर इज नो डाउट। पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे किसी भी काम से
जनरली दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचे। हमें जो परोपकार की बात है, उपकार तो करना ही है स्वयं का, पर दूसरे का भी सोचना है। और इस सब को करने के लिए आप हैप्पी तभी रह सकते हैं जब हम कंप्लीट वेलबींग की बात करेंगे। और कंप्लीट वेलबींग का मतलब है कि आप साथ साथ में हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को फील करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपकी लाइफ सेटिस्फाइड है, व्हाट यू कॉल हाई लाइफ सेटिस्फैक्शन, आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ मीनिंग और पर्पस है, करना क्या है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने अभी शब्द यूज नहीं किया, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस आना जो है वो नेचुरल है, वो थोड़ी सी चाहिए भी होती है, पर उस स्ट्रेस से कितने जल्दी बाहर आना। हमने रिसिलियंस की बात की थी शुरू में ही, तो कैसे कोप अप करोगे स्ट्रेस को, वो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। हर व्यक्ति यहाँ पे संसार में सबको वेलबींग चाहिए होती है, और वेलबींग जो है वो पॉजिटिव थिंग से ही आती है। आप तभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, जब आप सोशली कनेक्टेड होंगे और आपकी लाइफ पर्पसफुल होगी। एक दूसरे से जलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बस जलते रहो तब भी लाइफ पास हो जाएगी। तो वेलबींग में आपको अपनी इमोशनल वेलबींग, जिसमें स्ट्रेस को मैनेज करना है, रिलैक्सेशन की टेक्निक जो आपको अच्छी लगती है, बस ये कि किसी दूसरे को कष्ट ना हो उससे। ऐसा रिलैक्सेशन अच्छा नहीं होता कि दूसरे को कष्ट दो तो आप रिलैक्स हो रहे हैं। रिसिलियंट होना है, अपने अंदर सेल्फ बूस्ट लव, दिस इज सेल्फ लव को बूस्ट करना है। अपने आप से प्यार करोगे तभी आगे बढ़ोगे आप। आपको इमोशंस को जनरलाइज करना है और अपने अंदर गुड फीलिंग लानी है। इसके अलावा आपको फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखना है, कैसे आप अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सकते हो थ्रू हेल्दी लिविंग एंड डूइंग एक्सरसाइजेज, गुड एक्सरसाइज हैबिट्स। मैं बच्चों को देखता हूँ, बहुत दूर नहीं जाऊंगा, मेरे खुद के बच्चे हैं, वो रात में वो सुबह 4-4 बजे तक जागते रहते हैं, फिर 11-12 बजे उठते हैं। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है जो मेरे साथी जुड़े हैं मेरे साथ, ये शायद ना करते हो, करते हो तो इसको चेंज करने की कोशिश करिए। सोशल वेलबींग होनी चाहिए आपकी, आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, you develop meaningful relationship with others, meaningful relationship with others, I emphasize. Maintain a support network that helps to overcome loneliness. अकेलापन कभी फील नहीं करें, आप किसी के काम आओ, इससे हैप्पीनेस होगी और ऑब्वियसली स्टडी में आप अपना ध्यान लगा पाओगे। अगर वर्क प्लेस में जो मेरे जैसे लोग जॉब करते हैं, उनके लिए वर्क प्लेस वेलबींग, या स्टूडेंट के लिए वर्क प्लेस यूनिवर्सिटी या उनका कॉलेज होता है, तो वहां पे वो वेलबींग भी जरूरी है। You should have ability to pursue your interest, values and life purpose in order to gain meaning, happiness, आधे मिनट का ब्रेक लूंगा मंजू, आधे मिनट का है। जी सर, कोई बात नहीं। सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। आजकल जैसे हमने टेक्नोलॉजी की बात में कर रहा था, तो अभी एक ऐसा फोन था जिसको जी सर, वो टेक्नोलॉजी ही सर, ये हाँ, लेकिन मल्टीटास्किंग भी है ना, मतलब ये मल्टीटास्किंग तो भी ये भी जरूरी है, एक पर बैलेंस बेनिफिट भी बनाना है। है, बैलेंस बनाना है। तो जी जी वर्क प्लेस की वेलबींग की मैं बात कर रहा था, तो वहां से भी हमें प्रोफेशनली यू हैव टू गेन मीनिंग, हैप्पीनेस एंड एनरिचमेंट। सोसाइटल वेलबींग, जिसमें हमें इन्वायरमेंट से कनेक्ट होना है। एक सोशल वेलबींग थी, सोसाइटल है, जो हमारा आसपास है। यू शुड हैव एबिलिटी टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन थ्राइविंग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कल्चर एंड इन्वायरमेंट। जब ये वेलबींग हम मेंटेन कर पाएंगे तब हम हैप्पी होंगे, और हैप्पी होके हम परफॉर्मेंस जो है अपनी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो सेल्फ एफिकेसी की बात कर रहा था मैं। सेल्फ एफिकेसी जो है वो बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। इट इज एबिलिटी टू इफेक्टिवली हैंडल टास्क, ओब्लिगेशंस एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू प्रोफेशनल एक्टिविटी और पर्सनल एक्टिविटी। चाहे वो हमारे एकेडमिक्स हो, इसमें इट इन्फ्लुएंसेस एकेडमिक आउटकम्स, वेलबींग एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। तो सेल्फ एफिकेसी यानी आपकी खुद पे बिलीव होना, आपको खुद पे ट्रस्ट होना, कोई भी काम आपको दिया गया आप उसको कर सकते हो, ये सोच जो है ये आपको हैप्पीनेस की तरफ लीड करती है। अब तभी अगर आप अपने आप को, अपनी सेल्फ एफिकेसी पे बिलीव करोगे, तभी आप हैप्पी रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे और सेटिस्फाइड रहोगे। लाइफ जो है वो हमेशा आपको लर्निंग एक्सपीरियंस देती है, हमेशा आपका समय एक जैसा नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी स्मूथ। तो आप चीजों को अपने पक्ष में कैसे लाओगे, हाउ टू ब्रिंग थिंग्स इन योर फेवर। सेल्फ एफिकेसी जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिलीविंग योर सेल्फ, इट मैटर्स टू फेस द चैलेंजेस।
Self efficacy is central to social cognitive theory, which emphasizes the role of observational learning, दूसरों को देख के सीखना, social experience, society से सीखना, and reciprocal determinism in developing your personality. तो आप में वो belief, वो ability कि आप जिंदगी में सफल होंगे, you can succeed any situation, that is called self efficacy. The belief determine how one think, behave and feel. कोई भी कैसे सोचेगा, कैसे व्यवहार करेगा, कैसा अनुभव करेगा, ये सेल्फ एफिकेसी पे डिपेंड करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ यू अचीव योर गोल सक्सेसफुली. तो ये बहुत एसेंशियल पार्ट है आपके एक सेल्फ सिस्टम का कि आप सिचुएशन को कैसे परसीव करोगे और कैसे उस सिचुएशन को डील करोगे. जो मैंने शुरू में आपसे बात की परसेप्शन की, सिचुएशन कैसी भी आ सकती है. जिनकी स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी होती है, मैं उनके कुछ गुण बताऊंगा, हो सकता है आप सब स्ट्रॉन्ग हो इसमें. एक स्ट्रॉन्ग पर्सन विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी डेवलप ए डीपर इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज दे पार्टिसिपेट. सबसे पहली बात, कोई भी एक्टिविटी, अभी हम एकेडमिक्स की पढ़ने की बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात हो, पढ़ाने की बात हो, तो कोई जो सेल्फ एफिकेसी में स्ट्रॉन्ग होगा वो एक डीपर इंटरेस्ट उसमें अपना डेवलप कर लेता है उन एक्टिविटी में. फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कमिटमेंट. अब संकल्प होना चाहिए अपने काम करने का टू देयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज. और अगर आपकी मर्जी का काम नहीं हो पा रहा है, किसी चीज पे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो टू रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स. जैसे मैंने कहा, सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट्स जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन कितने जल्दी उनसे रिकवर आप होते हैं, वो रिसिलियंस की हमने बात की थी. बहुत जल्दी जो रिकवर हो जाए, वो उसकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो बहुत स्ट्रांग होती है. और लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम एज टास्क टू बी मास्टर्ड. आपके पास ऐसा काम आ सकता है जो आपको नहीं आता हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है. हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, तो हम कहें नहीं मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा. ये कभी नहीं कहना चाहिए. यू ट्राई योर बेस्ट. तो वो क्या करते हैं जिनकी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग होती है, दे व्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम एज टास्क टू बी मास्टर्ड. वो उसको सीखेंगे और उसमें मास्टर बन के दिखाते हैं. और जो वीक होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, वो चैलेंजिंग टास्क को अवॉइड करते हैं. मैंने काम दिया, उसने कहा सर मेरे से नहीं हो पाएगा. एक बात आप समझिए, दुनिया में अगर आप मना कर देंगे तो ऐसा नहीं है वो काम रुक जाएगा, आपकी जगह कोई दूसरा होगा. और अगर आपको ज्यादा काम मिले जिंदगी में, तो समझो कि आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि काम उसी को मिलते हैं जो उनको सक्सेसफुली पूरा करता है. जब आपको काम मिलना बंद हो जाए, ये मेरे कलीग के लिए भी और मेरे स्टूडेंट के लिए, तो समझो कि आपके दिन पूरे होते जा रहे हैं. तो मुझे जितना काम मिलता है तो मैं खुश होता हूँ कि चलो आज काम ज्यादा मिल रहा है तो मेरी नौकरी बची रहेगी अभी, ठीक है. ये सोच रखिए. तो चैलेंजिंग टास्क को जो अवॉइड करते हैं वो वीक होते हैं सेल्फ एफिकेसी में. और वो लोग जो ये बिलीव करते हैं कि जो डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये उनके बस में नहीं है, इट इज बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज, वो वीक होते हैं सेल्फ एफिकेसी में. वो फोकस करते हैं पर्सनल फीलिंग और नेगेटिव आउटकम पे. जो स्वार्थी हो जाते हैं पूरी तरह, बस अपना अपना देखना, पर वो स्वार्थी होकर आइसोलेट हो जाते हैं. और ये ऐसा है, ये हमारा समाज. अगर आप सामाजिक प्राणी नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते. सो यू हैव टू लव एंड लाइक एवरीवन. क्विकली लूज कॉन्फिडेंस इन पर्सनल एबिलिटीज. वो बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि ये तो मेरे से होगा नहीं, मैं तो मर गया, मतलब हाई तौबा मचा देते हैं, नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं. तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ना बने, आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी लगाएं जिससे हैप्पीनेस आएगी. और कैसे सेल्फ एफिकेसी आ सकती है, मैं दो चार बातें इसमें बताता हूं. एक ये है मास्टरी एक्सपीरियंसेस. जैसे हमने बात की, आपको ऐसा काम मिल सकता है जो आपने पहले कभी ना किया हो. जैसे वेबिनार लेना मेरे लिए पहले नया काम था, तो हमने शुरू किया, तो अब मैं ले लेता हूँ वेबिनार, मुझे प्रॉब्लम नहीं आती. अब मैं ये भी देख लेता हूँ कि कहाँ मुझे फोकस करना है, ठीक है. तो आपको सक्सेसफुल जो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स आपकी होगी उससे सीखना है. सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट करना है, उससे सीखते जाइए. सोशल मॉडलिंग, यू नो, टू विटनेस अदर्स हु डू टास्क सक्सेसफुली. जो दूसरे अच्छा काम कर रहे हैं उनसे कुछ सीखिए, देख के सीखिए. सोशल परसुएशन ये बहुत जरूरी होती है, लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी पीठ जरूर थपथपाओ, उसको मोटिवेट करो कि तुमने बहुत अच्छा किया है. क्योंकि ये एक परसुएड टू बिलीव दैट ए पर्सन हैज कैपेबिलिटी टू डू. जब हम किसी की को थपथपाते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, तो उसमें सेल्फ एफिकेसी आती है. साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है आपके जो अपने रिस्पॉन्सेज हैं, इमोशनल रिएक्शन है, वो सिचुएशन को कैसे हैं, यू कैन कंट्रोल देम. आपका मूड कैसा है, आपकी इमोशनल स्टेट कैसी है, फिजिकल रिएक्शन कैसा है,
स्ट्रेस लेवल कितने हैं आपके, और स्ट्रेस लेवल हैं तो उनको कैसे मिनिमाइज करना है और कैसे मूड को एलिवेट करना है। तो इस तरह से आप सेल्फ एफिकेसी डेवलप करके यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी। और जब आप हैप्पी होंगे तो मेरे से सवाल ये पूछा गया था कि कैसे आप हैप्पी हो सकते हैं। यू बी पॉजिटिव, यू विल बी हैप्पी। यस। Very nicely you have explained this point, sir. Thank you so much. And the most important point was here कि we should try our best. कभी give up नहीं करना है हमें, और ability to pursue our dreams. ये जो sir 2 lines थी, thank you so much. It is really helpful both for the students and the faculty to understand how mental well-being is important. In context to this, sir, another question is, how e-learning can cast a positive influence on learning ability, and it can refine the result as well. I think you repeated the question. I've already told about this e-learning, how it can enhance the learning outcome. इस पे तो बात हमने कर ली थी. Okay. Sir, actually, this question is again put up by the students that I have asked. Okay. Let me speak something. I must honor my audience. जो मेरे को सुन रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूं. Thank you, sir. Thank you. जैसे मैंने कहा जैसे कि हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है. I am really not against e-learning, and yes, I am in favor of face-to-face interaction. There's no doubt. तो जो हमारा एक तरीका है पढ़ाने का, ये तो चलता रहेगा. ये जो न्यू नॉर्मल आया था ये कुछ टाइम के लिए है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आप लोग रियलाइज कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतनी है. तो ई लर्निंग से आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, और स्किल्स पे आप अगर देखें तो इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी स्किल्स पे बहुत जोर देते हैं. एक अलग से मंत्रालय है स्किल्स का. स्किल्स को एनहांस करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू, आपकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी. और ई लर्निंग स्किल एनहांस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग आपकी मर्जी के, मन मर्जी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको करके आपके पास एक तो सर्टिफिकेट होगा और साथ में एक स्किल होगी. तो ई लर्निंग इज वेरी हेल्पफुल, वेदर यू टॉक ऑफ स्वयं प्लेटफॉर्म और मूक्स और अदर Coursera like platforms. So e-learning will definitely help in enhancing learning outcome. जी. Thank you so much, sir, for bringing down the curiosity of our audience. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सर, एक सवाल और भी है हमारी ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की तरफ से कि सर, is there any special note you want to give for today's webinar? कि मतलब हम किस तरह से अपनी स्टडीज को लेके और किस तरह से अपने वर्क को लेके खुश रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. Any special thing you want to tell us, sir? Yes, I will share something which I follow basically. Nothing like not some defined thing, but yeah, it's a very generalized thing. एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने लर्निंग की जब बात की थी तो मैंने कम्युनिटी लर्निंग की बात की. लर्निंग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें कम्युनिटी लर्निंग एक एट्रीब्यूट है. और अगर आप सच में सक्सेसफुल और खुश होना चाहते हैं तो टीम वर्क को आप प्रायोरिटी दीजिए. टीम वर्क, अब स्टूडेंट की बात है तो टीम वर्क, जब लर्निंग है, लर्निंग में भी यू कैन मेक ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. हम फार्मेसी में हैं, सभी फार्मेसी वाले हैं, तो जब हम फार्मुलेशन डेवलप करते हैं तो हम सबसे पहले प्री फार्मुलेशन प्रोफाइलिंग करते हैं, जिसमें ड्रग की और इंग्रेडिएंट की कंपैटिबिलिटी देखते हैं. आई थिंक ऑलवेज अप्रिशिएट दैट. और वो जो कंपैटिबिलिटी है वो इसलिए जरूरी है कि जब इनको हम इकट्ठा कर देंगे तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये अच्छे से रहें. तो जो टीम वर्क है, साथ में रह के सीखना, शेयर करना, डेयर करना और केयर करना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और जैसे मैंने शुरू में कहा कि नॉलेज और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसको जितना शेयर करोगे उतना ही वो बढ़ता है. तो ग्रुप में रह के एक कम्युनिटी लर्निंग, एक वातावरण बनाएं. एज टीचर भी हम कोशिश करें कि क्लास को एक कम्युनिटी बना के उनमें इतना अच्छा कनेक्ट डेवलप कर दें, जो हमने सोशल कनेक्ट की बात की थी, कि आप इंजॉय करते करें, स्टे करना, आप इंजॉय करें अपनी यूनिवर्सिटी में आना. यानी आपको घर से ऐसा लगे कि यूनिवर्सिटी जाना है मुझे. जब यूनिवर्सिटी में हम फार्मेसी में घुसे तो आपको लगे कि नहीं, ये वाला प्लेस है, दिस क्लासरूम आई वांट टू सिट, या द लाइब्रेरी इज लाइक आई वांट टू सिट. जब लोग बैठेंगे तो वो यूज भी होती हैं. तो टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर वेयर वी वर्क एज ए टीम, और जब टीम काम करती है तो डेफिनेटली प्रोग्रेस आती ही है. देयर इज नो डाउट.
जी जी सर, आपने कुछ चीजें तो खैर बहुत मुझे लग रहा है कि आपने जो बताई है वो मेरे अंदर, जैसे एफिकेसी की आपने बात बताई, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है कि हम सब लोग के अंदर कहीं ना कहीं डेवलप तो होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से मोर और लेस सबके अंदर थोड़ा बहुत है, शायद आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और हम लोग को थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग की जरूरत है बाय मीन्स ऑफ फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल की जहाँ पे बात करते हैं, तो वो हम अपने स्टूडेंट से भी सर कहना ये चाह रहे थे कि ऑन मतलब आप भले चाहे 2 मिनट के लिए आप कैसा भी आपको लगता है, आप थैंक अपने मतलब उस ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने आपको यहाँ पे भेजा, और आपके इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, आपके इतने अच्छे टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, तो वी शुड थैंकफुल टू ऑल, मतलब आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग थोड़ा सा ये जो ग्रेटिट्यूड वाली बात है, ये जो थैंकिंग जो नेचर है, इसको हम लोग को शायद थोड़ा सा वो ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अहम वाली जो भावना है, जो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो ये वाली जो चीजें अभी डेवलप हो रही हैं, खासकर जो आज की जनरेशन है, तो उनको थोड़ा सा इसको छोड़ना चाहिए, और थोड़ा ग्रेटिट्यूड पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा जो है अप्रोच होता है। और बाकी सर, आप ये जिस कल्चर की बात कर रही है, देखिए ये हमारा एक कैलेंडर है जो हिंदी में बना है, और ये हमारी ऑनरेबल को चांसलर मैम ने जो है ये खुद से डिजाइन करा है। हाँ, ये बहुत बड़ा, कल ही उन्होंने ये उसको हम लोग को पब्लिकली उनको दिया था, हैंड ओवर करा था, तो हम देख रहे थे इसमें। और जबकि उनकी बेटी फॉरेन में कहीं पढ़ती है, तो वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तक ही उसमें मेंशन है, और उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर वो एक हम लोग का क्विज लेंगे कि इस पे कि कैसे जो है हम मतलब हम लोग खुद में, हमारी फैकल्टी एंड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे कल्चर ये जो है, ये सारी चीजें जो हम लोग कहीं ना भूलते जा रहे हैं, हम लोग इंग्लिश कैलेंडर की तरफ आ रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हमारा नववर्ष कब से शुरुआत होती है। तो जी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करती हैं, अपने मतलब एक कॉन्फिडेंस लेकर आती हैं। आप फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं, पर हम हिंदी बोलने में जो झिझक है उसको हम जो है हटाना चाहिए। फिर फॉरेन लैंग्वेज को भी हम क्योंकि कहीं ना कहीं करेंगे तो हमारी एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, कहीं पे हम कॉन्फिडेंटली खड़े होंगे। तो बहुत सारी सर अच्छी अच्छी चीजें कहीं। और एक चीज सबसे अच्छी है सर, आपको अगर हम लोग फॉलो कर लेना तो 90% प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि हम लोग की वैसे ही सॉल्व नहीं हो नहीं, मैं जाएगी। इतना बड़ा नहीं हूँ, पर चलिए अच्छी बात है, थैंक यू। नहीं सर, आपके अंदर सर वो जो टैलेंट है खुश रहने का, वो जो सारी चीजें आप स्प्रेड करते हैं, और अपने हम लोग तो, आप तो सर मेंटोर ही रहे हैं, हमारा तो वाइवा लेने आते थे। हम तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं लोगों को कि सर जो है वाइवा लेने आते थे और हमारे टीचर रहे हैं। तो उस समय से लेकर के आज तक सर के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया है। बहुत अच्छे से पहले भी आप सर समझाते थे, और आज भी आप बार बार बोलें कि एज अ कलीग हम चाहते हैं कि मंजू ऐसे लीड करे या सारी चीजें। थैंक यू सर उन सब चीजों के लिए, एंड थैंक यू सर फॉर स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ SRMU, and I hope they really enjoyed your views and all the presentation you have given, and thank you sir, thank you so much sir, thank you sir. Thank you Manju, thank you all, thank you very much. So we extend deep gratitude and special thanks for enlightening this webinar with your depth of knowledge. Thank you for your precious time, sir. I would also like to thank our respected Director, Ma'am, Professor Dr. Manju Pandey. Thank you, ma'am, for giving us this great opportunity to the part of this webinar and representing Institute of Pharmacy, Sri Ram Saroop Memorial University. You really work effortlessly for us. I would also like to thank dear students and other faculty members for embracing this webinar. Thank you so much. We meet some other day soon. Thank you. Thank you.